Hello everyone. Today my lecture is on topic Guda Rog Pathya, means the diet and activities suitable for anorectal diseases. अर्थात गुदा रोगों में सेवनीय आहार एवं विहार. In this lecture we cover all those things which are suitable for the patients affected with anorectal disorders and also in preventing the disease of anorectal disorders. First, going to detail, you must know about what is anorectal disorders. अर्थात गुदा रोग क्या है. The anorectal diseases that affects the anus and rectal region are considered in category of anorectal disease. These diseases occurs at the site of anus and rectum. It includes various diseases. Among them, the common one is piles, fissure in ano, pericardica, fistula in ano, Bhagandar, rectal prolapse, Gudbranch, pruritus ani, and many more. The common reason behind these anorectal disorders are constipations, improper digestive powers, local causative irritating factors like pressure, straining, unhygienic conditions, and infection at the anorectal site, and the most common one is the current lifestyle disorders and food habits. Now, what is Pathya and Apathya as per Ayurveda? As per Ayurveda, the Pathya are the diets, are foods and activities that are suited to our body, and Apathya, you know that the foods and activities that's not suited to our body. The Pathya are described in this lecture in reference to anorectal disorders. In Ayurveda text, the Charak Samhita have a detailed description about Pathya and Apathya and said that Pathyam pathovan petam yadda choktah manasah priyam yacha priyam apathyam cha niyatam tanna lachet और मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्त द्युत दृश्यन्ते ते ते भावास तथा तथा. अर्थात जो आहार विहार आदि द्रव्य तथा शारीरिक चेष्टाएं स्रोतोरूपी मार्ग में अहितकर ना हो और जो मन को प्रिय लगे, प्रिय का मतलब जो शरीर एवं मन के लिए हितकारक हो, उन सब का नाम पथ्य है. पथ्य मीन्स द सुटेबिलिटी फॉर आवर बॉडी, और जो पथ्य की परिभाषा के विपरीत तथा शरीर और मन के लिए अप्रिय अर्थात मन और शरीर दोनों के लिए अहितकर हों, उनको निश्चित रूप से अपथ्य मानना चाहिए. क्योंकि ये सब पथ्य और अपथ्य की परिभाषा हर एक के लिए एक जैसा फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वैरी हो सकता है. इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्त तद्विद दृश्यन्ते ते ते भावास तथा तथा. मतलब एक ही आहार, एक ही एक्सरसाइज विभिन्न चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे मात्रा, काल, क्रिया अर्थात निर्माण विधि, भूमि, देह, शरीर, दोषों की अलग अलग स्थितियों की प्राप्ति होकर वह भाव अर्थात जो जो भाव हितकर और अहितकर कहे गए हैं उस प्रकार के अपने अपने कर्मों को करने वाले दिखलाई देते हैं. इन सब भावों का प्रभाव चिकित्सा पर भी पड़ता है. अर्थात और चिकित्सक का कार्य है कि वो जिन जिन द्रव्यों के जो जो गुणधर्म बतलाए गए हैं उन सब का मात्रा क्रिया काल आदि के आश्रित होना समझकर उन विचारों को करते हुए चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए. Now the Pathya is going to details as per practical point of view. This is the chart in which the anorectal conditions, foods and lifestyles are mentioned. First of all, fiber rich diet, रेशेदार आहार का सेवन करना चाहिए, और लाइक जौ, गेहूँ, चोकर युक्त आटा, छिलके वाली दाल, अंकुरित अनाज, मूंग, अरहर की दाल, ताज़ा पका हुआ खाना एंड मेनी मोर्स as per suitability of the particular patient's body. The another one is the fluids. The plenty patient takes plenty of fluids or adequate amount of fluids as per their requirement.
भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए एंड हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सीजनल एटमॉस्फेयर लाइक सर्दी, गर्मी आदि एंड ऑक्यूपेशनल बिहेवियर्स द पर्सन्स particularly involved in which atmosphere in their occupational periods। मिल्क इनटेक, मात्रावत दुग्ध का सेवन करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक छाछ, घी, मक्खन इत्यादि का सेवन हितकर होता है। छाछ में काला नमक, जीरा आदि डालकर उसे अधिक सुपाच्य बनाकर उसे लेने से डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होगा और एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा होगा। दी सलाद लाइक ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली, प्याज, नींबू, चुकंदर, दीज आर सुटेबल salad or fruits or vegetables which are beneficial for the patients. These making the bulk of the fecal matters so it pass easily and the cleaning of the GIT takes smoothly. The green vegetables like लौकी, बीन्स, ब्रोकली, पालक, पत्ता गोभी, हरे ताज़ा साग सब्जी, हरा धनिया, टमाटर एंड हरी मिर्च कम मात्रा में। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स which are suitable for the patients affected with anorectal disorders. Other fruits and conditions will be included depending on the suitability of the particular patient's body. The seasonal fruits, for example, like पपीता, अनार, केला, नाशपाती, तरबूज, अमरूद, बेल, सेब, आंवला इत्यादि। These fruits are just exemplary, but the amounts, the types of foods depends on the body of the persons and their personal interest. Dry fruits like अंजीर, मुनक्का, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, छुहारा, these are suitable fruits for the patients affected with anorectal disorders, but one thing always keep in mind that मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष, गुणांतरम, इसके आधार पर ही हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को निर्धारित कर सकते हैं। कोई चीज़ मात्रा से ज़्यादा लेने पर वो अहितकर हो सकता है और मात्रावत लेने पर वो हितकारी होगा। एक्सरसाइज एंड योगा लाइक वॉकिंग, जॉगिंग means you make active lifestyles and vyayam exercise, do the exercise as per your body strength। मात्रावत व्यायाम करना है जितना आपके शरीर के लिए अनुकूल हो। अनुलोम विलोम और अदर प्राणायाम्स which are suitable are for your body। मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था, नॉर्मल जनरल योगा प्रैक्टिस फॉर योर फिटनेस and warm up exercises for your body fitness. These all facilitate digestion, improve the digestive power and make the body fit. The psychological and behavioral activities, being happy, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। अवॉइड एंजाइटी एंड वरीडनेस, चिंता, शोक, भय, क्रोध इत्यादि से बचना चाहिए। कूल एंड काम, शांत भाव से रहना बेटर है, इससे डाइजेस्टिव पावर ठीक रहता है। सदाचार, बिहेव गुड मोरल कैरेक्टर्स, दीज आर द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज which directly or indirectly affect the GIT systems and patients particularly affected with these things, although they not know about the things that these things also harmful for their body. So always behave a good moral characters. If you got affected with any anorectal disorders, don't worry, take the pathya and follow the good moral characters. It should leads towards the healthful conditions. The other things like high fiber diet, food that prevent constipation, eat whole grain foods, intake balanced diet, select food and activities suitable for your body, take food timely, properly with good chewing habit, avoid day sleep and night awakeness. Non-vegetarian foods
with no spicy and with in appropriate quality should be suited for anorectal patients. In these slides you see that it focus mainly on the diet. आहार संतुलित होना चाहिए, मात्रावत होना चाहिए, चबा चबा कर खाना है और एकाग्रचित होकर बैठकर खाना है। खाने में हाई फाइबर डाइट ज़्यादा हो और पानी की मात्रा भी उतना ही लें जितना डाइजेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए खाने के बीच में थोड़ा कम पानी पिएं। भोजन करने के 15-20 मिनट बाद ही उपयुक्त मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे डाइजेस्टिव पावर सही होगा। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में स्पाइसी और बहुत तेल मैदे मसाले वाली चीज़ पड़े हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दिन में सोना और रात्रि में जागरण ये बचना चाहिए। एक्सेस टीडियस जॉब से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, बॉडी के एक्सर्शन जीआईटी फंक्शंस पर प्रभाव होगा। एक्सेस ड्राइविंग, एक्सेस सिटिंग, एक्सेस स्ट्रेनिंग एंड मेनी मोर्स, एक्सेस स्टैंडिंग, ये सब अत्यधिक मात्रा में जो चीज़ें हैं वो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है और ऐसे में एनोरेक्टल डिजीज बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। इसी क्रम में चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 2 में लिखा है कि मात्राभ्यभिरतम पथ्यम चान्नम नाजीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख सैया प्रजागरे। चरक ने लिखा है कि हम व्यक्ति मात्रावत आहार करता है और पथ्य आहार का भी सेवन करता है, फिर भी उसके भोजन या उसका जो डाइजेशन सही नहीं होता है, भले ही वो कितनी भी दवा और सब कुछ करे, क्योंकि उसके पीछे का कारण है साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो पहले भी मैंने बताया है। उसमें है चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख सैया प्रजागरे। मीन्स चिंता करना, शोक करना, भयप्रद रहना, दुखी रहना, अत्यधिक गुस्सा करना, रात्रि में जगना और दिन में सोना इत्यादि बिहेवियर्स जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को डिसऑर्डर्स हैं और ऐसे में एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द simple description about the anorectal pathy in anorectal disorders. I hope you are able to understand about the things. Thanks for your patience listening. Thank you so much.